Every detail matters, every account matters. Exclusive scoop coming in on Pahalgam investigation. 2 terrorists wore tracksuits, traditional Kashmiri attire. Now remember, this is also because every single piece of evidence that will be right now of help to the National Investigation Agency that the eyewitnesses can also reveal. Remember that there had been images that there was, so to say, as it is called in colloquial terms, a Pathani suit that was worn as the images had surfaced. Now there are also eyewitnesses accounts suggesting that there was Kashmiri Ferran that was also being worn. Does that suggest a certain local angle? But also remember, foreign terrorists could also wear it because they've been hiding in jungles for the past few days while they were doing recce. So it's also a bit to mix in with the local population. Pakistan-sponsored terrorists have been made clear that they are the ones who carried out the massacre, even though there had been some level of possibly local active terror support. 3 terrorists, meanwhile, have at least been confirmed that they had gunned down the tourists. Remember, these are consistent developing updates that are coming in. There are photographs, videos, more and more evidence that is being collected by the National Investigation Agencies. But the NIA sources say that there was definitely a religiously motivated attack. Hindus were sidelined, were asked to stand in a different zone, and that's when they were targeted. I want to immediately have this report from Arvind Ojha from Kashmir. इस वक्त मैं पहलगाम में मौजूद हूं और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार जो पुलिस और एनआईए है आसपास के लोकल लोगों से पूछताछ कर रही है। हमारे साथ एक घोड़े वाले हैं जो अभी पहलगाम पुलिस स्टेशन, जरा दिखाइए, ये पहलगाम पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर पूछताछ के लिए आए हैं। अभी आप क्या करते हो? हम तो ये घोड़े का काम करते थे सर। अच्छा, घोड़ा क्या यहाँ नीचे से बैरसन घाटी की तरफ? हाँ सर। ये जो तमाम लोकल लोग हैं इनको ही पूछताछ के लिए बुलाया गया? हाँ सर, सबको। एक मिनट आइएगा, आप सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया है? सारे लोगों को? हाँ सर। क्या आप क्या चल करते हो? हम तो घोड़े चलाते हैं मैडम। अच्छा, तो आप देखिए एक के बाद एक जितने लोग आपको भी बुलाया गया? हाँ जी। क्या करते हो आप? मैं घोड़े वाले का काम कर। तो देखिए तमाम जो घोड़े वाले हैं जो घाटी, जो बैरसन घाटी है वहाँ पर जाते हैं, उन सभी से यहाँ जो पहलगाम पुलिस स्टेशन है और यहीं एनआईए की टीम मौजूद है। यहीं पर लगातार जो पूछताछ है वो जारी है, एक एक करके जो डिटेल्स है वो ली जा रही है। Remember that the NIA is tracing any piece of evidence, photographs, witnesses who have been able to record videos either by chance like the zipline video or risking their life to be able to record what they can gather. More and more videos will likely come in. Remember, many survivors still in trauma for what they miraculously escaped. Arvind Ojha joins me for the latest on that. Arvind, जो details हमारे सामने आ रही हैं, हर तरह के आई विटनेस सर्वाइवर्स से बात करी जा रही है। आप जो डिटेल्स एक्सेस कर रहे हैं अपने सोर्सेज से, अब काफी सर्वाइवर्स तो दूसरे शहरों राज्यों से आए थे, वो चले गए हैं, क्या उनसे भी अभी पूछताछ जारी है और लोकल से किस तरह की पूछताछ हो रही है? देखिए 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद अब जो है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उसके सामने पिक्चर वो क्लियर हुई है और इंडिया टुडे ने जो एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन डिटेल है वो एक्सेस किया है पूजा, जिससे 22 अप्रैल को वहाँ जो टेरर अटैक हुआ था उसकी कहानी अब एजेंसी के को क्लियर हो चुकी है। और वो जो अटैक हुआ था उसमें 3 टेररिस्ट जो गोलियां चला रहे थे वो एस्टैब्लिश्ड हुआ है कि 3 ही टेररिस्ट जो पाकिस्तानी थे वो गोलियां चला रहे थे। 25 जो आई विटनेस हैं, जो विक्टिम भी हैं, उनके स्टेटमेंट एजेंसी ने रिकॉर्ड किए हैं। उसके अलावा जो वहाँ पर खाली कारतूस के खोखे मिले थे उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। अब जो पिक्चर क्लियर हुई है कि एक जो टेररिस्ट था वो एग्जिट गेट से आता है, जहां पर इंडिया टुडे ने ग्राउंड रिपोर्ट भी जाकर की थी। एग्जिट गेट से आता है और वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वो भी एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि एग्जिट गेट से जब गोली चलाई गई तो उसके बाद सभी जो टूरिस्ट है वो एंट्री गेट की तरफ भागने लगे बाहर निकलने के लिए, और एंट्री गेट की तरफ 2 टेररिस्ट खड़े थे। एंट्री गेट के पास ही टी स्टॉल और भेलपुरी की शॉप है, और फिर वहां पर सभी को इकट्ठा किया गया। पहले टेररिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो
मेल और फीमेल है वो अलग अलग हो जाए, लोग नहीं माने। उसके बाद बोला गया कि हिंदू मुसलमान वो अलग हो जाए, लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद फिर जो टेररिस्ट है उन्होंने जो कलमा है वो लोगों से बोला पढ़ो, और उसके बाद फिर गोलियां मारने लगे। सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी हुई है वो एंट्री गेट के पास जो टी स्टॉल है जो भेलपुरी का है वहीं पर हुई है। वहीं पर जो नेवी के ऑफिसर्स थे, एंट्री गेट से जो टेररिस्ट आए थे उनको गोली मारी गई थी। तो 25 जो आई अकाउंट है, जो आई विटनेस है, जो विक्टिम है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ये भी क्लियर हुआ है कि जो 2 टेररिस्ट थे वो ट्रैक सूट पहने हुए थे, जबकि एक जो टेररिस्ट था वो जो कश्मीरी पहनावा होता है फिरन वो पहना हुआ था। हालांकि एजेंसी का कहना है चौथा टेररिस्ट भी हो सकता है जो इन 3 टेररिस्ट की मदद के लिए आया हो, लेकिन अभी तक ये क्लियर हुआ है सभी जो आई विटनेस और विक्टिम्स है, जो आई विटनेस वहाँ पर मौजूद थे, 3 टेररिस्ट थे जो लगातार गोलियां चला रहे थे, जिसमें एक एग्जिट गेट से आता है जहां इंडिया टुडे ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, एक एंट्री गेट से आता है जहां पर इंडिया टुडे ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन की जो डिटेल्स है वो इंडिया टुडे के पास आई है। साथ ही साथ मैं आपको पुलिस स्टेशन भी दिखाना चाहता हूँ जहां पर जो एनआईए की टीम है वो स्टेशन है। यहीं पर एनआईए की टीम, जो अब से कुछ देर पहले आपने रिपोर्ट पूजा दिखाई होगी, यहीं पर जो घोड़े वाले हैं, बाकी जो लोग बैरसन घाटी में 22 अप्रैल को मौजूद थे उनसे यहाँ पर एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। जो सुराग है, जो एविडेंस है वो तलाशने की यहाँ पर लगातार एनआईए की टीम जो है कोशिश कर रही है। पूजा, अरविंद, आप मुझे ये भी बताइए, देखिए एनआईए के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा मैसेकर हो गया और उसमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं जेएंडके को लेकर, तो किस तरह से अब वो आगे बढ़ेंगे? फॉरेनर टेररिस्ट है, टेररिस्ट आर स्टिल एट लार्ज, उनको आर्म्ड फोर्सेस ढूंढ रही है इन जंगलों में। एनआईए का मेन एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि हर दिन जो एक नया वीडियो आ रहा है, छोटा एविडेंस भी, छोटी डिटेल भी मैटर कर सकती है इस टाइमलाइन के लिए। देखिए, जो इस केस से जुड़े इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मेरी खुद बात हुई, उनका कहना है कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। वहां पर पहले इंसिडेंट के दूसरे दिन एनआईए की टीम गई थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ। वहां पर पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। उसके बाद जो आई विटनेस थे, जो विक्टिम्स थे, उनसे धीरे धीरे करके उनका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, तब जो 22 अप्रैल की पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर थी, वो एनआईए को क्लियर हुई। ये भी सामने आया है कि जो टेररिस्ट थे वो लेफ्ट साइड की पार्क में लेफ्ट साइड की वॉल कूद करके भागे, लेकिन ऑफिसर ने साफ साफ बताया कि ये जो ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके की प्रॉपर रेकी की गई। जो टेररिस्ट थे वो कई दिन पहले इस स्पॉट पर आ गए थे, प्रॉपर रेकी कर रहे थे, उन्होंने आर्म्स छुपाकर यहाँ पर रखे हुए थे, फॉरेस्ट एरिया से ही आए हैं और उसके बाद फॉरेस्ट एरिया की तरफ ही भाग गए। इसलिए पहलगाम, जरा मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरह की जो ऊंची ऊंची जो वैली है वो यहाँ पर है, और इस साइड पे लगातार जो सर्च ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो चल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो बहुत दूर तक नहीं गए होंगे। इसलिए ये अगर पैन करके हम आपको दिखाते हैं तो इस तरह की जो पूरी वैली है वो यहाँ पर है, और इसी फॉरेस्ट एरिया से जो टेररिस्ट है वो जो आप भी हमें बता रहे हैं बहुत जरूरी है, वो सर्वाइवर अकाउंट्स में भी रिपीटेडली आ रहा है, एंड दैट इज अबाउट द एंट्री गेट एंड द एग्जिट गेट. This was not a very developed, massively developed tourist point. So there were a bhelpuri stall, a temporary tea stall. As you can see, temporary structures. अरविंद, उस सवाल पे हमें बताइए, एक एंट्री एग्जिट पॉइंट और वहां पे भी लगता है कि फायरिंग हुई. दैट मीन्स टेररिस्ट का इतना रेकी था कि इनको पता था कि सर्वाइवर कहीं भाग नहीं पाएंगे और आएंगे तो उसी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, तभी वहां पे मैसिव कैजुअल्टीज हुई है. बिल्कुल, देखिए, और पूजा और इंडिया टुडे की टीम ने वहां पर जाकर वीडियो एविडेंस के साथ जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया. मैं खुद वहां पर गया था और इस वजह से एक अगर सबसे पहले एक वीडियो, वो वीडियो एविडेंस भी है जब सबसे जो पहले जो गोली चलती है वो एग्जिट गेट की तरफ से चलती है. जो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि एक वाइट शर्ट का जो वहां पर टूरिस्ट था, सबसे पहले टेररिस्ट उसको गोली मारता है. वो एग्जिट गेट पर खुद इंडिया टुडे की टीम मौजूद थी, वहां से पहले टेररिस्ट आया और ये एक प्लानिंग का
जो टेररिस्ट है उनका हिस्सा था, क्योंकि एग्जिट गेट पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। अगर वहाँ पर फायरिंग होती है तो ये कॉमन सेंस है कि जो लोग भी हैं वो एंट्री गेट से बाहर भागने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से एंट्री गेट की तरफ जो टूरिस्ट है वो भागे, और वहाँ पर पहले से ही 2 टेररिस्ट थे। उन्होंने फिर एक एक करके सभी को बेहद करीब से गोली मारी। पहले उनको बोला कि जो मेल फीमेल है वो अलग हो जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, वो लोग नहीं मान रहे थे। उसके बाद फिर कलमा पढ़वाया और उसके बाद फिर एक एक करके गोली मारी है। तो जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है वो एंट्री गेट पर हुई है। इसलिए जो एजेंसी उसको लगता है कि इस पूरे एरिया की प्रॉपर रेकी की गई, एंट्री गेट कहाँ है, एग्जिट गेट कहाँ है, वो सब कुछ टेररिस्ट को मालूम था। उनको ये मालूम था कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, इस वजह से यहाँ जो टेरर अटैक किया गया। जी, Leave no doubt about the fact that the NI will piece together the investigation, but also that the armed forces already hunting in the jungles when it comes to these terrorists. Terrible massacre has taken place. All our reporters on the ground to help us understand what exactly happened. How did Pakistan manage to sadly, successfully pull this off in Pahalgam?